welcome to the very important episode of the second phase of literature, film, art, and music of the international webinar series Past, Present, and Future Global Pandemic and India COVID 19 Situation. So, today we have two important personalities from the world of Indian television and films. We have with us Varun Badola, with us who has been in the industry for quite a long time. That include बनेगी अपनी बात, कोशिश एक आशा, देश में निकला होगा चांद, अस्तित्व एक प्रेम कहानी. And he has also shot into fame when he played the role of a mentally disabled person on the television show Coaches, which was produced by Balaji Telefilms, and which proved to be a super hit on ZTV. He has acted in many movies that include Hasil, Charas, Main Meri Patni Aur Wo, Mickey Virus, and 7 Hours to Go, to name a few. And he has directed and written the script for the show Ek Chabi Hai Pados Mein. He carries a powerful legacy of his father, Vishwamohan Badola, who was also a renowned theatre artist, and he has worked very successfully in some films. Uh, and is married to Rajeshwari Sachdev, who is a celebrated actress and singer. Our other guest tonight is Akshat Khildial, who is a renowned screenwriter and shot into fame with Badhai Ho in 2018 and walked away with all the prestigious awards. Filmfare Award for Best Dialogue, IFA Award for Best Dialogue, and the film also won a national award. So Varun, to start with it, मैं आपके ट्वीट्स पढ़ रही थी जहां आपने कंटेंट ड्रिवन शोज की बात की है. तो क्या आप टीवी शोज में रिग्रेसिव कंटेंट की बात कर रहे थे? जैसे आपने मेरे डैड की दुल्हन इज अ टेरिफिक रोल with real content that you have is working with. So as far as your work is concerned, your content is concerned, you have donned a mature look and you're playing a mature character in a new role. How secure or insecure do you feel with all these scenarios? Like I spoke about the content, I spoke about the role that you're playing in Mere Dad Ki Dulan. I spoke about your playing that mature look and a mature character. Uh, Over to you. So, one thing that nobody has been able to change is the process of aging. So, there will always come a time for every actor, no matter how much you try and delay it or how much you're able to delay it. The fact is that the age is going to catch up. Whether you want to, go with the tide and start playing characters which suit your look, if not your age. Because frankly speaking, the character that I'm doing in Mere Dad Ki Dulan is supposed to be 50, and I am still 4 years shy of 50 myself, but just about getting there. Well, you used two very important words there. How secure or unsecure do I feel? Well, I've never been unsecure in the sense that had I been unsecure, I would have dyed my hair black and, I would have tried to probably do or take up some other character. But probably, right from the start, I always invested in characters which nobody else really wanted to do. As you mentioned, Koshish Higasha. I remember a lot of actors telling me that they had auditioned for that role or they were asked to audition, but they refused because, playing a demented character made no sense to them because it was too much of a risk. And I feel that uh, profession aside, you do not become an actor just to run the kitchen. I personally feel that every job that you do or every person in this world should be passionate about the job that he or she does. But you do not become an actor just because you wanted to run your kitchen. You become an actor because you were passionate about this craft. That you
like any engineer or a doctor spends 5 years in the college preparing to become an engineer or a doctor. A lot of people do not take acting that seriously. Um, but I feel that you should be driven enough, you should be motivated enough to become an actor, and this is why I just tried. Rather, I deliberately take a lot of risks. I do characters which, as I said, others do not really want to do, and probably that has been the reason that if I now look back, there is a certain body of work which is very different from a lot of others. In fact, Desh Mein Nikla Hoga Chand, when we took a leave, even in Astitva when we took a leave, I refused to remain normal with the black hair. I completely changed my look, all those things. So just trying to make things as real as possible. Akshat, what was going on in your mind? Because this is not my question. This is everybody wanted to know when we were reviewing your film. What was going on in your mind when you conceived the content of बधाई हो? How did you feel the script unfolded to you? कैसे ये स्क्रिप्ट आपके अंदर एक अनफोल्ड हुई? कैसे आपने कैरेक्टर्स को उसमें ढाला है? कैसे वो कहानी को आपने किया है? और ये हम सबके दिमाग में आया था कि कहानी मतलब though we know these kind of things are around, but still the for the movie the content like that was something different. So we would like to know about that. देखिए, जहाँ तक इंस्पिरेशन का सवाल जाता है, मैं आई डिडंट हैव टू लुक टू फार, मेरे को अपने घर से ही मिल गई इंस्पिरेशन। तो मेरी नानी गॉट प्रेग्नेंट व्हेन माय मॉम वाज 18, माय एल्डेस्ट मामा वाज 23। सो एक जोक था, मेरी मौसी इज जस्ट 10 इयर्स ओल्डर देन मी, तो घर में एक जोक चलता रहता था इस तरीके का, तो ये बात दिमाग में रहती थी। देन व्हेन आई शिफ्टेड टू बॉम्बे and I had done this, I had written this idea as a television commercial when I was working with an advertising agency. So जब मैं बॉम्बे शिफ्ट हुआ तो मुझे ऐसा लगा कि शायद इसमें अपने आप में एक फिल्म है, पूरी की पूरी फिल्म। और क्योंकि फिल्म विक्की डोनर और दम लगा के ईशा टाइप की फिल्में बन रही थी, तो थोड़ा उम्मीद भी बन जाती है, आपको लगता है कि हाँ, लोग शायद थोड़ा सा अलग तरीके की कहानी को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो दैट्स हाउ आइडिया तो मेरे दिमाग में कि ये पिक्चर का आइडिया हो सकता है, दैट्स व्हेन इट केम टू माय माइंड। उसके बाद then the writing process took quite a bit of time because I was also working with an advertising agency while I was writing it, especially the first draft. But प्रोसेस इस हिसाब से था कि एक बार ये प्लॉट आ गया कि मतलब मम्मी प्रेग्नेंट हो जाती है एट द एज ऑफ अराउंड 50, तो उसके बाद फिर ये सोचना था कि इसको किस तरीके के मिलियू में सेट करना है। दिमाग में आया कि अगर हम इसको बहुत अपर मिडिल क्लास रखेंगे तो थोड़ा सा एक्सेप्टेबल हो जाती हैं चीजें बिकॉज ऑफ द एक्सपोजर एंड एवरीथिंग। तो अगर इसको थोड़ा लोअर मिडिल क्लास में रखेंगे तो थोड़ा ये भी होता है लोअर मिडिल क्लास में अड़ोस पड़ोस आसपास के लोगों का आपकी लाइफ में दखल अंदाजी थोड़ी ज्यादा होती है, जो कि एम्बैरेसमेंट की स्टोरी को ज्यादा अच्छे से शायद निकाल पाए। तो फिर ये डिसाइड हो गया कि मिलियू क्या होगा, क्योंकि मैं दिल्ली बहुत साल रहा हूं तो मुझे लगा दिल्ली ही बेस्ट जगह इसको सेट करने के लिए। फिर ये हुआ कि दोनों लड़के ही होने चाहिए, क्योंकि लड़कों को शायद ज्यादा एम्बैरेसमेंट होती है इस तरीके की चीजों को लेकर कंपेयर टू अ गर्ल, बिकॉज मदर एंड अ डॉटर वुड स्टिल discuss, at least they'll discuss periods and other stuff. Yes, but yes, लड़कों के साथ तो मम्मी का इस तरीके का कोई डिस्कशन ही नहीं होता है, नहीं तो होता। दोनों फिर ये बात आई। फिर थोड़ा ये दिमाग में आया कि भाई 50 साल की उम्र में वो है रिलेशनशिप, तो उनका रिलेशनशिप कैसा होगा मियाँ बीवी का। तो उससे ये दिमाग में आया कि पिताजी जो है वैसे सरकारी नौकरी करते हैं बट मन से शायर है, मन से कवि है, तो आदमी रोमांटिक है। तो बीवी चाहे अपने रोजमर्रा के घर के कामों में फंसी रहती है, पर हस्बैंड का उनको देखने का नजरिया अलग है, क्योंकि वो प्रेम रस के ही कवि है, तो वो देखते ही चीजों को रोमांटिक तरीके से। और फिर जो दादी का कैरेक्टर था वो उससे आया कि मैंने प्रीटी मच अपनी नानी को उठा के फिल्म की दादी बना दिया। बस मेरी नानी इतना जोर से नहीं बड़बड़ाती है, पर वो कुछ ना कुछ बोलती रहती है, जब कुछ बोलना शुरू चुप नहीं होती है। तो
बस ये हो गया कि आपको जब आप फिल्म के उसमें ढाल रहे हो उस चीज को, तो उसको आपने थोड़ा सा एम्पलीफाई कर दिया कि वो थोड़ा ज्यादा जोर से बम बम करके बोलती हैं, सबको हड़का देती हैं, जो कि मेरी नानी नहीं करती हैं। और वो आपको थोड़ा सा कि एंटरटेनिंग होना चाहिए और उनके बोलने से फिल्म के प्लॉट पे असर पड़ना चाहिए। वो सब चीजों को देखते हुए फिर वो कैरेक्टर्स हुए और बाकी मतलब फिर तो राइटिंग तो ऐसा प्रोसेस है, मतलब वो तो वरुण भी बताएंगे आपको क्योंकि वो खुद भी लिखते हैं कि री राइटिंग। तो आप लिखते हो, फिर आप उसको सोचते हो कि यार ये ठीक बैठ रहा है, नहीं बैठ रहा है, एंड देन यू गो बैक टू इट अगेन, यू सी कि क्या कहते हैं, कौन सी चीजें हैं विद इन द स्क्रिप्ट जिनको आप बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। ये तो होना ही होना है, अदरवाइज ये फिल्म जैसे मेरी बधाई हो हमेशा से एम्बैरेसमेंट की कहानी थी, वो लेट प्रेगनेंसी की कहानी नहीं थी। इट वाज ऑल अबाउट डीलिंग विद द आइडिया ऑफ एम्बैरेसमेंट, चाहे वो पेरेंट्स के लिए हो, चाहे वो दादी के लिए हो, चाहे वो उनके बेटों के लिए हो, बट वो एम्बैरेसमेंट से आप किस तरीके से डील करते हो, वो बेसिकली मेरे लिए वही कहानी थी। तो फिर एक बार आपको वो धागा पता लग जाता है कहानी का, तो फिर वो चीजें अपने आप थोड़ा थोड़ा खुलने लग जाती है। सो दैट्स हाउ इट हैपेंड। ग्रेट। सो वरुण, आपने जैसे बताया you had been in the industry for a very long time now, and your body of work is amazing. और आपने इंडस्ट्री को बदलते हुए देखा है, और अगर इंडस्ट्री बदली है तो आप सिर्फ में हम पूछना चाहेंगे तो किस जहां से आपने अपनी जर्नी शुरू करी और जहां आज आप हैं, और जो कोविड-19 सिचुएशन के जमाने में, तो क्या-क्या चेंजेस आपने अपने टाइम में इंडस्ट्री में बदलते हुए देखी है? जो भी बदलाव है, इससे बड़ा बदलाव तो और हुआ नहीं इतनी जल्दी और इससे बड़ा। सही मायनों में बताऊं तो इस इंडस्ट्री को जब मैंने काम शुरू किया था तो उस समय तक ये कंटेंट ड्रिवन इंडस्ट्री थी। मतलब लोग तरह तरह के अलग अलग तरह के कॉन्सेप्ट पे शो बनाते थे। अल्टीमेटली तो देखिए कहीं ना कहीं पे आपका फलक्रम जो है वो तो लव स्टोरी ही रहता है। और दुनिया में मतलब सही मानों में देखा जाए तो 99% फिल्में जो है उसमें जो है लव स्टोरी होती है, तो वो टेलीविजन शोज में भी होती है। एंटरटेनमेंट जो है जो कि रोज आप मुहैया करा रहे हैं लोगों को उनके घर में, उसमें एक हल्कापन भी होता है, उसमें इमोशंस जो है वो उस पर आप ज्यादा खेलते हैं। लेकिन जब मैंने शुरू किया था काम तो उस समय ऐसा नहीं था कि जो सास बहू और ये जिसने आज जो है जकड़ के रखा हुआ है हिंदुस्तानी टेलीविजन को, वो सिचुएशन नहीं थी। जैसे कि बचपन में हमें याद है कि एक मिर्जा गालिब की भी जगह बनती थी, और एक कब तक पुकारो भी जो है वो डीडी पे चल रहा होता, एंड ऑल दीज वर वेरी मीनिंगफुल शोज। फिर एकदम से जो है हम लोगों की इंडस्ट्री को मार्केटिंग ने जो है वो पूरी तरीके से जकड़ लिया कि आपके नंबर्स अगर नहीं है तो आप जो है कहीं स्टैंड नहीं करते। फिर मतलब आपका चैनल वो नंबर 2 से नंबर 3 से नंबर 4 और इन परपंच में फंसा रहेगा। और हुआ उस चक्कर में ये कि आपने जो है स्टोरीज को कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर, फिर आपने टीआरपीज जो है उनके ऊपर कंसंट्रेट करना शुरू किया। उसके लिए मीटर लगाए गए जिनको कि फज भी किया गया, उसमें तरह तरह की चीटिंग भी हुई। और आपने जो है मीटर्स लगाए ऐसी ऐसी जगहों पे जो कि मतलब एक पर्टिकुलर इवन एट द कॉस्ट ऑफ बीइंग इनफेमस, आई विल से कि एक इंटेलेक्चुअल लेवल जो है उन लोगों का इतना नहीं था। आपने उन लोगों के घर पे जो है मीटर लगाए जो कि आपको मालूम है कि वो कभी भी नेशनल ज्योग्राफिक्स जैसी कोई चीज नहीं देखेंगे। वो एक ही तरीके के जो है ये सामाजिक शोज देखेंगे जिसमें औरत को प्रताड़ित किया जा रहा है। और धीरे धीरे करके सिचुएशन ऐसी पैदा हो गई जो कि मैं मानता हूं कि हम लोगों ने फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम इंटेलिजेंट ऑडियंस के लिए टीवी बनाना बंद ही कर दिया। कि अगर आप जो है मतलब जिसने और इंटेलिजेंट ऑडियंस जो है उसमें
औरतें और मर्द दोनों शामिल हैं, क्योंकि ये जो डेली सोप जितने भी चलते हैं, ऐसा नहीं है, मेरे घर में भी देखे जाते थे एक समय तक। लेकिन अस्तित्व जब तक चल रहा था, या फिर एक शो एक चाबी है पड़ोस में जिसमें मैं एक्टिंग भी कर रहा था, वो शोज ऐसे थे कि फिर भी अपर मिडिल क्लास लोग भी बैठ के आराम से साथ में देख लिया करते थे। लेकिन कई और ऐसे शोज हैं जिनका मैं नाम नहीं लूंगा, जो आप देख ही नहीं सकते, क्योंकि वो सीधा सीधा आपकी इंटेलिजेंस को चैलेंज करने लगता है। तो बहुत सारे मर्द तो एकदम टीवी से दूर हो गए, क्योंकि ये सास बहू के जो नाटक, जो सागास थे, वो उसमें जो है उनका कोई इंटरेस्ट था नहीं। और धीरे धीरे करके आपने अपनी ऑडियंस खोनी शुरू की। आपके जो जीआरपी जिसे कहते हैं, ग्रॉस जो आपका रेवेन्यू जो होता है, वो आपका जो है खत्म होने लगा, मार खाने लगा। और स्थिति आज भी कोई बहुत अच्छी नहीं है, सिर्फ लेकिन लॉकडाउन से एक चीज ये हुई है कि आज की डेट में आप फिल्में देखने नहीं जा सकते। मुझे नहीं लगता कि अगले 1 साल तक आप फिल्में देखने जा पाएंगे, क्योंकि 500-600 लोग जो है, अगर किसी मल्टीप्लेक्स की एक हॉल की कैपेसिटी अगर है, तो 300 से 500 के बीच में कुछ भी आप रिस्क नहीं लेंगे कि 500 लोग जो है वो एक कमरे में बंद पिक्चर देख रहे हो। तो अब सब कुछ जो है ये ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज होने वाला है काफी समय तक। टेलीविजन इंडस्ट्री के पास एक बहुत अच्छा इस समय मौका है कि जो जो गलतियां आपने की हैं, जो यू कैन एक्चुअली रीगेन सम लॉस्ट ग्राउंड। और यहाँ पर जो है दिन रात मुसलसल काम चलता है, इसलिए क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स को ये लगता है कि उनको ऑडियंस की नब्ज मालूम है। मुझे लगता है किसी को कुछ नहीं मालूम है कि एक दिन पहले आप स्टोरी बदल देते हैं, एक दिन पहले आप, मतलब सुबह तक शूटिंग चल रही होती है, रात के एपिसोड जो टेलीकास्ट होने वाला है। मुझे लगता है इतने इनडिसिप्लिन ने कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं पहुंचाया इंडस्ट्री को। और हम लोगों को बेहतर कहानियां बनाने पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, जो कि हम लोग बिल्कुल भी नहीं करते। इस लॉकडाउन के बाद ये बहुत सारे लोगों की सोच भी बदलेगी, क्योंकि अब कुछ समय तो सिर्फ टेलीविजन और ओटीटी प्लेटफॉर्म ही लोगों का एंटरटेनमेंट का माध्यम है, और आपके पास कोई चारा नहीं। सो जैसे बहुत सारे लोग जो है वो ओटीटी प्लेटफॉर्म की तरफ जाने शुरू हो गए थे। आज की डेट में तो आपके पास एक स्मार्टफोन अगर है, तो आपको टीवी की जरूरत ही नहीं। मतलब विरार से आदमी जो है, जो ट्रेन में बैठता है, या जो औरत बैठती है, वो चर्च गेट पहुंचते पहुंचते उसको 2 घंटे से ऊपर लगता है। तो वो तो 2 घंटे में हर प्लेटफॉर्म पे, वो हॉटस्टार पे जाएगी, वो सोनी लिव पे जाएगी, जगह जगह जाके। और ये जितने भी सीरियल्स चल रहे हैं, ये तो आप मुफ्त में देख सकते हैं उन प्लेटफॉर्म्स पे, तो सब्सक्रिप्शन की भी जरूरत नहीं। तो हो ये रहा है कि वो लोग सारे के सारे बैठ के आराम से, इत्मीनान से अपने उस ट्रेन ट्रैवल में जो है सारे एपिसोड्स देख लेते हैं जिसको देखना होता है, और बाकी तो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं। तो कंटेंट की कमी बिल्कुल नहीं है, इतना ज्यादा लोगों के पास ऑप्शन है कि अगर ये वही है, जैसे इकबाल साहब ने लिखा था कि न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक नहीं, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों वो दास्तानों में। तो ये हम लोग इसी तरफ बढ़ रहे थे। ये पेंडेमिक जो है वो अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, लेकिन देयर इज सो मच टू लर्न। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो बदलकर सही की जा सकती हैं इस समय। आपने बहुत सही कहा वरुण जी। कंटेंट की कमी नहीं है, और ऑडियंस भी काफी मैच्योर हुआ है इस बीच। तो बहुत चैलेंजेस हैं, और अक्षत, बधाई हो फॉर मी, जो आपने भी बोल दिया, एम्बैरेसमेंट है 25-year-old का। Whereas for some, it is a story of the evolution of the society. क्या ये सोसाइटी का evolution है? Which is symbolized, आपने जो कैरेक्टर दादी का क्रिएट किया है, उसमें जो हमें evolution दिखता है। आपको कौन सा पर्सपेक्टिव आज इस कहानी में ज्यादा नजर आता है? एक तो एक तरफ आपके पास 25-year-old है, दूसरी तरफ आपके पास 70-75-year-old दादी है। तो ये सोसाइटी है, बिकॉज सोसाइटी हु हैज गॉन फ्रॉम टू दिस स्टेज एंड हाउ शी डील्स विद इट। तो आपको कौन सा पर्सपेक्टिव उसमें ज्यादा नजर आता है? नहीं, देखिए, मतलब कैरेक्टर्स तो किसी भी कहानी में रेंज होता है उनमें, इस हिसाब से कि
अलग अलग बैकग्राउंड से हो सकते हैं, अलग अलग एजुकेशनल बैकग्राउंड से हो सकते हैं, फाइनेंशियल और उम्र का भी उनके बीच में वो हो सकता है। तो कहानी तो मेरे हिसाब से वो एक फैमिली की कहानी थी, कि हर फैमिली में हर आदमी कैसे उस चीज के साथ डील कर रहा है। जहां तक आप बोल रहे थे मैसेज का, तो मैं मैसेज में ज्यादा बिलीव नहीं करता हूँ। मुझे लगता है फिल्मों का काम है कहानी कहना, मैसेज देने का काम हमारा नहीं है। मैसेज देने के लिए बहुत बड़े बड़े लोग हैं। तो और मुझे लगता है थोड़ा सा सेल्फ इम्पोर्टेंस भी झलकती है अगर आप मैसेज, आप कहते हो कि मेरी कहानी में कोई मैसेज है। लोग वही लेके जाते हैं कहानी से जो उनके साथ रेजोनेट करता है। तो आप उनको चाहे कितना ही बढ़िया मैसेज दे दीजिए, अगर उनके साथ रेजोनेट नहीं करेगी बात, तो वो कभी नहीं लेके जाएंगे कुछ भी अपने साथ। ऐसा तो होता नहीं कि वो अपनी अपनी जिंदगी थिएटर के बाहर छोड़ के आते हैं, अपनी जिंदगी साथ लेके आते हैं थिएटर में, और फिर वो देखते हैं कि यार इस कहानी से मेरी जिंदगी कहाँ पे मैं अपना क्या चीज को इसके साथ आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, और फिर उसी हिसाब से वो जो भी कहानी में से उठाना होता है वो लेके चले जाते हैं वो अपने साथ। तो मैं मैसेज में बिलीव नहीं करता। मुझे लगता है आजकल कुछ ज्यादा ही एम्फेसिस है मैसेज पे। मुझे लगता है पिक्चरें इतने they can't talk down to the audience like that, where they say कि I have a message for you, and what it also does is it takes away the nuance in filmmaking, क्योंकि आप बारीकियां नहीं रहती फिर फिल्म में, आप बहुत ही एक वैसे तौर पे डिक्टेशन देने लग जाते हैं ऑडियंस को कि भाई देखो ये फिल्म इस बारे में है, ये फिल्म इस बारे में है। आप 50 बार वो बात बता देते हैं ऑडियंस को, जो कि मतलब एक तरीके से ऑडियंस की इंटेलिजेंस इंसल्ट करने के बराबर है। एंड मतलब वो आपको फर्क पता भी लगता है जब आप कई इंटरनेशनल फिल्म्स देखते हो, आपको पता लगता है वहां पे क्यों लोग चीजों को थोड़ा सा ओपन टू इंटरप्रिटेशन रखते हैं, बिकॉज वो ऑडियंस की इंटेलिजेंस को वो करते हैं। अगर कुछ हो भी तो उनके जवाब वो खुद से ढूंढे। बिल्कुल भी दूं और मैं आपको जवाब भी दे दूं, तो वो मुझे लगता है थोड़ा सा गलत चीज है वो कहानी कहने में। मतलब मेरे हिसाब से जो कहना चाहता है उस तरीके से वो कहे, बट मुझे लगता है कि आपको बस नज कर देना चाहिए ऑडियंस को, और उसके बाद अगर वो बाद में अपने घर जाके सोच रहे हैं कहानी के बारे में, वो ज्यादा बेहतर है रादर देन आप सारे आंसर्स देके के उनको घर भेजें। बिल्कुल सही बोला आपने कि नज कर देना चाहिए, बिकॉज दे शुड look for their own answers when they are looking into them. It's after all entertainment. एक चीज मैं यहाँ कहना चाहूंगा इसमें, अक्षत जो बात कह रहा था कि वो जो मैसेज देने वाली बात है, और ये सालों साल लोगों ने कोशिश की कि मेरी पिक्चर ये कहना चाह रही, मतलब अगर पिक्चरें इतनी ही कुछ कह रही होती और उसका इतना ही बड़ा इम्पैक्ट होता पूरी की पूरी सोसाइटी में, तो फिर तो रामायण देखने के बाद हिंदुस्तान में राम राज्य आ जाना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। वैसा हुआ नहीं है। तो मतलब हर आदमी जो है ना वो उतना ही देखता है और उतना ही समझता है पिक्चर से, जितने की उस अपनी कन्वीनियंस पे आदमी फिल्म देखता है, और अपनी कन्वीनियंस पे उससे जो है कुछ भी सीखने की मुझे लगता है कि कुछ सीखने की कोशिश भी करता है। इससे एंटरटेनमेट का माध्यम है, बी एंटरटेन एंड गो होम। में और जैसे आफ्टर ऑल इस चीज से क्या होता है ना, लोग बहुत ज्यादा फिल्मों को सोसाइटी में, समाज में गलतियां हैं उनके साथ जोड़ने पिक्चर में देखा आप ऐसे बनते। बिल्कुल। अगर आप हिंदी फिल्मों को देखेंगे तो हमेशा भला आदमी जीतता है, हमेशा भला आदमी जीतता है, हीरो हमेशा बढ़िया आदमी होता है, वो हमेशा जीतता है। जिंदगी में कहाँ होता है ये? अगर लोग इतना पिक्चरें देख के इन्फ्लुएंस हो रहे होते तो आज जैसे बोला यहाँ दुनिया भर में सारे राम ही घूम रहे होते, राम और लक्ष्मण ही मिलते आपको गली टुक्कड़ पे, तो ऐसा नहीं है ना। नहीं, तो ये बड़ा कन्वीनियंट बात है कहने के लिए कि पिक्चर देख के लोग बिगड़ जाते हैं। पिक्चर का थोड़ा सा मतलब मेरे ख्याल से पिक्चर को हमेशा से लोगों ने बिगड़ने वाला मीडियम की तरीके से देखा है। मतलब जब से पिक्चरें बनती आई हैं हिंदुस्तान, माँ बाप हमेशा बोलते बेटा किताब पढ़ो, पिक्चर देखने के लिए कोई माँ बाप नहीं कहते बेटा पिक्चर देखो, क्योंकि किताब में भी तो वो सारी सैलिशियस चीजें हो सकती हैं जो कि आपको लगता है कि फिल्मों में होती, पर लोगों को ऐसा लगता है किताब पढ़ाई का माध्यम के आसपास है तो ये अच्छी चीज है, फिल्म नाच गाना है तो ये बुरी चीज है। तो ये थोड़ा सा एक एलिटिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू होता है फिल्म के लिए, जो कि आप उसको थोड़ा सा नीची निगाह से देखते हैं लोग, जो कि मुझे लगता है कि बहुत गलत तरीका है। बिल्कुल। A boring book is considered better than a good film. Absolutely. True, absolutely true. True.
So, uh, मैं वरुण से अब पूछना चाहती हूँ कि कुछ लोग कहते हैं कि Indian audience haven't changed at all, or they keep on watching what they had been watching in the past. You have also spoken about it. वहीं दूसरी ओर कुछ क्रिटिक्स का मानना है कि इंडियन ऑडियंस भी बदली है, इवॉल्व हुई है, मैच्योर हुई है with the content and with the storyline. How do you feel that TV industry need to change the content that they show on the television? हाँ, अभी ये बहुत ही एक तो फंसा हुआ सवाल है, इसलिए कि हम लोगों की पहले तो ये देखना चाहिए हमें कि हिंदुस्तान की 130 करोड़ से ऊपर की जो टोटल जनता है, उसमें से टीवी कितने लोग देखते हैं। जैसे अभी किसी सर्वे के हिसाब से ये पता चला था कि ये जो नेट कनेक्शंस जो है, इंटरनेट अभी उसकी पेनिट्रेशन कुछ 40% तक है, व्हिच इज ह्यूज। 130 करोड़ लोगों में अगर 40% लोग जो है वो इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। उसके ऊपर से आप जो चेंज करने की बात कह रही हैं या फिर जो लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान की ऑडियंस बदली है, वो चेंज सोसाइटी के किस तबके में आया है? ये आप मानकर ये तो बात मानेंगे कि 90% से ज्यादा हिंदुस्तान अभी भी छोटे शहरों और गांव में रहता है। और उसको मैं मतलब संकीर्णता नहीं कहूंगा, लेकिन भाई आप जिस सोसाइटी का हिस्सा है, वो सोसाइटी, वो समाज जिस तरीके से चलता है, आप अभी भी उसी तरीके से चलते हैं। जैसे मैं अभी लखनऊ गया था, एक फिल्म लिख रहा हूँ उसकी रेकी के लिए। तो वहां पे जो है कुछ एक चीजें उस समाज के बारे में पता करनी थी, तो एक किटी पार्टी है जो औरतों की होती है, उनके साथ बैठकर मैंने और जो डायरेक्टर है उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि भाई हम लोग टीवी वीवी नहीं देखते, क्योंकि घर में जो है वो एक टीवी है, वो हॉल में लगा हुआ है। अब मतलब जो घर का सबसे बड़ा होता है उसके हाथ में रिमोट होता है, तो वो बादशाह होता है, वो जो देखना चाहे फिर बाकी सब वही देखते हैं। तो उन्होंने बताया कि मैं टीवी हम लोग नहीं देखते, हम लोग जो है हफ्ते में एक बार या फिर 15 दिन में एक बार सारे के सारे मिलके जाते हैं किसी सिनेमा हॉल में, पिक्चर देखते हैं। तो मतलब कि वो ओटीटी प्लेटफॉर्म में भी जो है आपकी वेब सीरीज वगैरह का कंजम्पशन वो कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि उनके पास स्मार्टफोन तो है, लेकिन घर में वो जगह नहीं है जहां पर वो इत्मीनान से कोने में बैठकर जो है अगर कुछ तो दूसरे की नजर ना पड़े और वो सवाल ना पूछे उनसे कि भाई क्या देख रहे हो कोने में बैठ के। तो मतलब आप जो है नॉर्थ की, सिर्फ नॉर्थ ही नहीं, दुनिया हिंदुस्तान भर में कितनी सारी औरतें हैं जो कि आपकी पोटेंशियल कंज्यूमर हो सकती हैं, लेकिन आप उनको खो रहे हैं इसलिए क्योंकि वो अभी भी जॉइंट फैमिली सेटअप में रह रही हैं, या फिर कुछ है, या फिर कईयों को जो है बच्चे संभालने से फुर्सत नहीं है, तो वो टीवी क्या देखें। तो वो मतलब हर 15 दिन में एक बार सास के गोद में जो है बच्चे को थमा के और उसके बाद चली जाती है 4-5-6 घंटे के लिए बाहर। तो अगर बदल भी रहा है हिंदुस्तान का समाज या हिंदुस्तान की ऑडियंस अगर बदल भी रही है, तो मुझे नहीं लगता कि वो अभी इतना बड़ा इम्पैक्ट डालने वाली है इन द कमिंग टाइम। इसको अगर 10 लोग रह रहे होते, उसमें से एक बदल गया होता, तो 10% ऑडियंस बदल गई होती। 130 करोड़ में से अगर मैं बोल रहा हूँ करोड़ लोग भी बदल गए, तो वो फिर भी 129 का बाकी का आप क्या करेंगे? सो अभी भी मुझे लगता है वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो। लेकिन ये भी बात ध्यान में रखनी चाहिए कि वो लोग जो कि वाकई कुछ दूसरा अलग कंटेंट देखना चाहते हैं, आप उनको जो है पूरी तरीके से नजरअंदाज ना कर दें। बीच में कुछ एक जैसे एपिक चैनल ने जो है बहुत कमाल कहानियां और हिस्टोरिक जो है इंफॉर्मेशन देनी शुरू, वो लोग देखना चाहते हैं उस तरीके से। मैं आज भी ये मानता हूँ कि हिंदुस्तान अगर आपको समझना है ना, तो आपको दूरदर्शन देखना चाहिए। वो नॉर्थ ईस्ट और पता नहीं कहाँ-कहाँ जाके लोगों के ऊपर, वहाँ की संस्कृति के ऊपर शोज बनाते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं, वहां से लेकर आते हैं। आपके जितने भी ये ब्रॉडकास्टर्स हैं, वो तो ऐसा कुछ नहीं करते हैं। आप सोनी, स्टार या फिर जी टीवी वगैरह को देखिए, तो उसमें तो इन चीज को लेकर ना कोई डॉक्यूमेंट्री में काम हो रहा होता है, ना कोई ऐसा शो बन रहा होता है।
तो अभी भी ऑडियंसेस जो है उसको अब जब बोलते हैं कि वो बदल रही है, तो फिर वो बहुत एक छोटा सा तबका है जो कि बदल रहा है, और वो ट्रिकल के बराबर भी नहीं है सही मायने में देखा जाए। बिल्कुल। लेकिन आप अगर कंटेंट अच्छा दिखाएंगे, भाई वही है ना कि हम लोग जो है बार बार बहाना मारते हैं कि हम तो वो दिखाना चाह रहे हैं, कि दिखाते हैं जो कि ऑडियंस देखना चाहती है। अब ऑडियंस तो कल मतलब बोलेगी कि हमें मुजरा देखना है, तो आप हर चौक पर मुजरा थोड़ी ना शुरू करवा देंगे। हम्म, एज लीडर्स ऑफ अ कंट्री, लीडर का यही काम होता है ना कि वो लोगों को सही दिशा में लेकर जाए। तो हम लोगों को इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री से लेके कहीं पे ये एक चीज, एक तो सेम पेज पे पहुंचना पड़ेगा कि नहीं, इन लोगों को वो दिखाओ जो कि अच्छा है। अच्छा है, देख देख के इनको बिल्कुल आदत पड़ जाएगी अच्छा देखने की। बिल्कुल। हम लोग उस तरफ ध्यान ही नहीं देते। हम लोग एक्चुअली, फ्रैंकली स्पीकिंग, Akshat might want to disagree on this point, but I feel that not just television, but even filmmaking in India is not an art form. कुछ इक्के दुक्के होंगे जिनको वाकई इस ये लगता होगा कि नहीं यार, हम लोग कुछ आर्टिस्टिक काम कर रहे हैं। हर चीज यहाँ पे बिजनेस ड्रिवन है, जो कि होनी भी चाहिए। अगर फिल्म पैसा नहीं कमाएगी तो भाई धंधा क्या चलाएंगे लोग। लेकिन उसके बाद भी मेरा मानना ये है कि फॉर 99.9% ऑफ द पीपल दिस इज नॉट एन आर्ट फॉर्म। ये सिर्फ एक बिजनेस है, जिससे कि जो है आप जितना पैसा कमा सकते हैं कमाएं। आप आर्टिस्टिक मतलब लोगों के कईयों के तो दिमाग में तो वो अग्री ना करें, बट मैंने तो मैं तो जितना करता देखा हूँ। ना, बाय गॉड, अभी मैं तो मतलब ये सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं है, ये तो वर्ल्ड वाइड है ये बात। मतलब अगर आप इस समय इंटरनेशनल फिल्म्स भी देखें, हॉलीवुड की फिल्में देखें, आप 12 साल के ऊपर के बच्चों के लिए से नहीं बन रही है वो फिल्म। एवेंजर्स, आप कौन सी मुझे तो पता भी नहीं है कि कौन कौन सी वो है। मैं तो कई बार ये बात सोचता हूँ कि मतलब हम लोग तो गॉडफादर देख के पले बड़े कि यार ये फिल्म होती है। अब जो बच्चा एवेंजर्स देख रहा है और उसको लगता है कि ये बेस्ट फिल्म है अभी तक की, वो क्या तो सोचेगा, मतलब, और वो कितना ही एक्सप्लोर करना चाहेगा मीडियम को। मतलब अभी बीच में पिछले साल आयरिशमैन रिलीज होते हुए मार्टिन स्कोर्सेसी ने बोला भी था कि क्या कहते हैं, ये थीम पार्क फिल्म्स है, जिसमें कि बहुत बड़ा हो हंगामा हुआ कि ऐसे कैसे बोल दिया मार्वल की फिल्म्स को। बट ये सच है। मतलब आप जो देखते हो वो आपको सोचने पे मजबूर करता है किसी लेवल पे, या वो आपका आपका स्किल्स, आपका सोचने का तरीका, उन सब चीजों को थोड़ी धार देता है। जहां पे हर बार दुनिया को बचाने वाली कहानी होगी कि अर्थ डिस्ट्रॉय हो रही है और सारे सुपर हीरोज खड़े हो गए और दुनिया को बचा रहे हैं, तो वो मेरे ख्याल से वो क्रॉस बोर्ड है। बहुत वर्ल्ड वाइड फिल्मों का स्तर गिरा ही है। ऐसा नहीं है कि वो ऊपर गया है। आप बहुत ही कम इंडिपेंडेंट वॉइसेस देखते हैं, और ऐसी इंडिपेंडेंट वॉइसेस इवन इंटरनेशनल सिनेमा में जो कि आगे चल के बहुत बड़े फिल्म मेकर्स बनेंगे, जो कि 70s के फिल्म मेकर्स हैं, जो आज हॉलीवुड के फिल्म मेकर्स जो आज लेजेंड्स हैं। ऐसे बहुत कम वॉइसेस आपको दिखती हैं कंपैरेटिवली। है, ऐसा नहीं है कि आवाजें नहीं है, पर कम हो गया वो सब कुछ, क्योंकि सारा का सारा एम्फेसिस कॉमर्स पे हो गया। हाँ, कि हम स्टूडियोज, अमेरिकन स्टूडियोज को भी पता है कि हम अगर मार्वल वाली टाइप की फिल्में बनाएंगे तो वो चाइना में भी चलेंगी, वो इंडिया में भी चलेंगी। तो वहां की जो इंडिपेंडेंट फिल्म होती है वो कभी इंडिया में नहीं आती। तो ऑडियंस ऑलरेडी वंचित है। अच्छी फिल्म बनी भी है तो उसको सिर्फ फिल्म फेस्टिवल में जाके देख सकता है वो अपने घर पे नहीं देख पाएगा। आपका नेटफ्लिक्स पे नहीं चलाएंगे वो वाली। उसमें भी जो फेस्टिवल फिल्म्स होती हैं वो नेटफ्लिक्स और अमेजॉन अपने प्लेटफॉर्म्स पे नहीं चलाएंगे, बिकॉज उनको भी पता है कि इसकी ऑडियंस यहाँ पे भी लिमिटेड है। तो वो डिसीजंस उन्होंने आपके बिहाफ पे ले रखे हैं। सो एक तरफ आप बोलते हो कि क्या कहते हैं, आपने पावर ऑडियंस को दे दी है हाथ में विद नेटफ्लिक्स एंड अमेजॉन, बट ऐसा है नहीं। कोई ना कोई ये बैठ के उन उन दफ्तरों में ये जज कर रहा है कि यार इसकी वजह से मेरे प्लेटफॉर्म पे ज्यादा लोग देखने आने वाले हैं कि नहीं देखने आने वाले फिल्म को। तो वो एक थोड़ा सा स्तर तो अपने आप गिरता चला आया है फिल्मों का, उसमें कोई शक की बात नहीं है। लोग बड़े आजकल बहुत ये बात बहुत चलती है, कंटेंट ड्रिवन फिल्म, कंटेंट ड्रिवन फिल्म, पर वो कंटेंट ड्रिवन फिल्म भी शायद इसलिए है क्योंकि हम लोग उससे पहले बिल्कुल ही बिना कंटेंट की शायद फिल्में बनाते थे। हो सकता है कि मतलब कंटेंट पे बिल्कुल ही एम्फेसिस नहीं था। हो सकता है कि आपका स्केल और फॉरेन लोकेशंस
और डिजाइनर वेयर, इन सब चीजों पे ज्यादा एम्फेसिस था कंपेयर टू कहानी क्या है कि या फिर स्टार्स कितने बड़े होते। वो खैर वो ऐसी चीज है जो कि कभी आउट ऑफ फैशन नहीं जाएगी। स्टार्स का अपना एक वो होता है पुल, जो कि लोगों को थिएटर में लेके आता है। पर कंटेंट का स्तर जो है वो आई थिंक वो हमेशा की डिबेट रहती है। ऐसा नहीं है कि वो डिबेट पहले नहीं थी या वो डिबेट कल नहीं होगी। वो हमेशा रहेगी और उसके बीच में ही कुछ लोग अपनी-अपनी तरीके की फ़िल्में बनाते रहेंगे जो थोड़ा-सा एनवेलप पुश करते रहते हैं और सिनेमा को आगे लेके जाते रहते हैं। और या फिर अगर आप अमेरिकन टेलीविज़न को ही देखेंगे, जो अमेरिकन टीवी का रिवाइवल हुआ है विद दीज़ लिमिटेड सीरीज़ इन द रीसेंट पास्ट, लास्ट 10-12 साल में, वो भी शुरू हुआ, किसी ने शुरू करा। वायर जैसा शो आया, फिर आपका ब्रेकिंग बैड आया, ट्रू डिटेक्टिव आया। सो द क्वालिटी ऑफ वो टेलीविजन जस्ट स्टार्टेड गोइंग अप। बड़े-बड़े नाम आने लग गए टेलीविजन में। डेविड फिंचर ने हाउस ऑफ कार्ड्स बनाया, डेविड फिंचर ने माइंडहंटर बनाया। और भी बड़े-बड़े फिल्म मेकर्स जो हैं वो टेलीविजन पे जा रहे हैं, क्योंकि उनको भी यही लग रहा है कि हम टीवी पे अपने जो कहना चाहते हैं वो शायद हम कह सकें, क्योंकि टीवी Yes. पे इंटरनेशनल टेलीविजन में वो जगह है कि आप थोड़ा अडल्ट और मैच्योर कंटेंट बना सकते हैं, क्योंकि फिल्मों में वहां पे भी जगह नहीं रही है। फिल्में वहां पे 12 साल के बच्चों के लिए ही बन रही। तो वो लोग वहां पे टीवी की तरफ जा रहे हैं। हमारे यहाँ देखते हैं कहाँ जाती है बात, क्योंकि अभी थोड़ा फ्लक्स में है मामला। मतलब हम उतनी बड़ी फिल्में तो बनाते नहीं है, पर अभी छोटी-छोटी थोड़ी कंटेंट ड्रिवन फिल्में चल रही हैं हमारे यहाँ। बट ऐसा बहुत कम काम आया है अभी इन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स में भी, जिसको कि देख के आपने कहोगे अरे वाह! क्या काम आया। मतलब या मैंने इंटरनेशनल शोज़ देखे थे, उनके टक्कर के कुछ 3-4 ही ऐसे शोज़ आए। बाकी तो मतलब प्रोसेस में ही है। टीवी से थोड़ा-सा बेहतर है बस वो शोज़। तो अब जैसे वेब सीरीज का जमाना है और आपने भी बोला उसी के बारे में, वी हैव मेनी वेब सीरीज अक्रॉस डिफरेंट मीडिया पोर्टल्स। पहले हम हाउस ऑफ कार्ड्स और वो बाहर की ज्यादा वेब सीरीज देख रहे थे, लेकिन अब इंडियन वेब सीरीज भी काफी आ गया है, जैसे सेक्रेड गेम्स है, फैमिली मैन है, मिर्जापुर, पाताल लोक, पंचायत, जो भी इस बीच हम लोगों ने भी काफी उसको देख पाए। तो वरुण और अक्षत, मैं दोनों से ही एक सवाल पूछना चाहती हूँ। जैसे where do you think script writing, content writing would experience a paradigm shift from films to television and from television to web series, which have a far-reaching audience? क्योंकि television भी restricted होता है, लेकिन web series are not restricted to the geographical boundaries. No, it is a far-reaching audience across the globe. So where do you see the script writing and the content, the paradigm shift, जो एक shift हुआ है from films to television and from television to the web series? ये अभी तो मुझे लगता है दैट अभी हम लोग सिर्फ बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स जो हैं दे आर डूइंग नथिंग बट ट्राइंग टू कैच आई बॉल्स। आप जो है अब क्योंकि सब्सक्रिप्शन है आपका 300 रुपए साल का या 1000 रुपए साल का, नेटफ्लिक्स का तो खैर मतलब कुछ 600 650 रुपए अगर आपको एचडी चाहिए तो महीने का लग जाता है। लेकिन हिंदुस्तान की अगर बात करें तो अभी ये है कि एवरीबडी इज जस्ट ट्राइंग टू कैच आई बॉल, कि सबसे ज्यादा लोग जो है वो हमारे प्लेटफॉर्म पे आए। एंड मैं जेन्युइनली बात बताऊं कि अभी ओवर इंडल्जेंस बहुत ज्यादा है। मतलब इंडल्जेंस, ओवर इंडल्जेंस ही है कि आप बड़ा ग्राफिक कंटेंट बना रहे हैं, आप जबरदस्ती का अडल्ट कंटेंट बना रहे हैं ताकि लोग जो है वो सब्सक्राइब तो करें आपके ओटीटी प्लेटफॉर्म। एक बार लोग आ जाएं तो उसके बाद फिर हम कोशिश करेंगे कि कुछ अच्छा इंटेलिजेंट भी बना के लोगों को दिखा दें। पर अभी तो ये है कि पहले तो पब्लिक बटू, और जब से हम लोगों ने बनाने शुरू किए हैं ये मतलब मैं नाम गिना सकता हूँ आपको, जैसे ऑल्ट बालाजी का कंटेंट जो है वो आप नहीं देखेंगे इजीली बैठकर। उल्लू टीवी एक और ओटीटी प्लेटफॉर्म है जिसका कंटेंट जो है वो आप परिवार के साथ बैठकर नहीं देख सकते। बहुत सारी ऐसे कंटेंट्स हैं। मैं सही आपको बात बताऊं तो ये स्मार्टफोन जब से लोगों के हाथ में आया है ना, एंटरटेनमेंट जो है अब वो उसमें वो जो फैमिली आउटिंग वाली जो फीलिंग थी वो खत्म हो चुकी है।
जैसे कि वो अक्षत बोल रहा था कि अभी वो थीम पार्क फिल्म्स हैं 12 साल से ऊपर की, और ये आप अभी देखिएगा कि ये 12 साल के बच्चों की जो पिक्चरें जो हमें लग रही है ना, अब यही रिलीज हुआ करेंगी, क्योंकि इन ये जब बिजनेस करती है ना, तो इनका जो बिजनेस है उसमें जीरो कितने लगते हैं, आप उनको गिनना पता शुरू ही करें तो चलता। हाफना शुरू कर दें। इतना भयंकर वो है। और लेकिन यही फिल्में हैं जो जिनको मतलब हिंदुस्तान में सलमान खान की फिल्म आती है, वो 2-3 हजार सिनेमा हॉल्स बुक मतलब थिएटर बुक कर लेते हैं। उसके बाद किसी दूसरे के लिए बचता कहाँ है भाई कुछ? तो जिसके पास पावर है, मतलब उनको मालूम है उनकी रीच ज्यादा है, तो वो ये कर रहे हैं। हिंदुस्तान में भी ऑलमोस्ट कुछ ऐसा ही हाल है इस समय ओटीटी प्लेटफॉर्म में कि आप जो है वो बनाइए जो कि लोगों को जो है खींच सके। और अब एंटरटेनमेंट जो है इट हैज बिकम अ वेरी इंटीमेट वो एक्सपीरियंस। चीज बन गई कि आप जो है अपने फोन के साथ बैठे और आप अपना जो है कोई भी वेब सीरीज, मतलब मैं जेन्युइनली अपने लड़के के साथ जो है बैठकर, अब लॉकडाउन में वो हर दूसरे दिन बोलता है कि पापा कुछ देख लेते हैं। अभी जैसे गुलाबो शताबो रिलीज हुई तो वो 16 प्लस थी, तो जाहिर है वो 10 साल का लड़का, उसको, क्योंकि मुझे तो मालूम नहीं ना उसके अंदर कंटेंट किस तरीके की, मुझे मालूम है कि बहुत ही बेहतरीन फिल्म होगी, सूर्य विल नॉट मेक अ बैड फिल्म, बट स्टिल वो एज का प्रॉब्लम। मैं कोई भी ओटीटी प्लेटफॉर्म का जो है नहीं देखा जा सकता। आपकी चॉइसेस अल्टीमेटली बचती क्या है कि आप उसके साथ बैठ के स्पाइडरमैन 1, 2, 3 जो कि आप 15 बार देख चुके हैं, आपको वही देखना पड़ता है, क्योंकि उसमें आपको इतना तो मालूम है कम से कम कि भाई एक आदमी जो है वो इधर से उधर छलांगे मारता ही दिखाई देगा। सो एंटरटेनमेंट जो है वो बड़ा इंटीमेट हो गया है कि आप अपने फोन के साथ बैठे और आप अकेले में देखिए जो आप देखना चाहते हैं, वो सिंपल सी चीज। लेकिन उसमें भी मुझे लगता है कि अभी इंडल्जेंस बहुत ज्यादा है। अभी हमारे मेकर्स जो हैं वो कोशिश ये कर रहे हैं कि थोड़ा जो है फ्लैश शो किया जाए और ये सारी सारी चीजें। आप जो है उसको ग्राफिक कंटेंट, मतलब मुश्किल तो ये है ना कि लोग ऑल्ट बालाजी के अगर शो देखने के लिए जाते हैं, उन्होंने कोई रागनी एमएमएस 1, 2, 3, 4 बना दिए हैं, एक ट्रिपल एक्स पार्ट 3 बन चल रहा है, गंदी बात एक और शो है जो चल रहा है। तो मुश्किल तो ये है कि एक्स वीडियो पे तो ये सारा कंटेंट आपको मुफ्त में देखने के लिए मिल जाता है, तो आप 300 रुपए भी क्यों दोगे? आपके पास कहानी तो हो। अगर आप उस पर कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर रहे हैं तो फिर वही बात आ जाती है कि अल्टीमेटली सब कुछ कंटेंट ड्रिवन कुछ भी नहीं है, बिजनेस ही है जो कि हर चीज को ड्राइव कर रहा है। एक अच्छी कहानी सुनाने का मन आपका है ही नहीं। और बहुत सारे मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैं अभी कुछ दिनों में एक वेब सीरीज जो मैंने लिखी थी वो रिलीज होने वाली है। उस प्लेटफॉर्म पे हमारी वेब सीरीज जो है जो कमीशन की गई वो पहली ओरिजिनल वेब सीरीज थी। वरना इन लोगों ने ये मान के रखा हुआ था कि हिंदुस्तान में कोई भी ओरिजिनल काम तो ढंग का कर नहीं सकता है। तो आपने इसराइल की एक वेब सीरीज उठाई, उसका हिंदी में तर्जुमा करवाया, वो बनवाई। आपने एक इंग्लिश उठा ली, वो बनवाई। आपने कोई एक किताब उठा ली, वो, मतलब कि उनको एक पैसे का कॉन्फिडेंस नहीं था कि इनको हिंदुस्तान में अगर हम किसी को बोलेंगे कि भैया ढंग का कोई कंटेंट बना दो, तो ये ओरिजिनल कुछ भी ढंग का बना पाएंगे। तो जहां पर एक मतलब सोच के लगता है ना कि यार, मतलब हमारी अकेली कुछ 30-40 जो उन्होंने कमीशन किए हैं उसमें हम अकेले हैं जो कि अपनी ओरिजिनल स्टोरी पे काम कर रहे हैं। मुझे लगता है ये इससे ज्यादा शर्म की बात है कि तो 30-40 में से उनको एक कहानी लगा कि हाँ ये शायद बना लेंगे, तो इनको बनाने दो। बाकी सब अडाप्टेशन, या तो बाहर की कोई किताब, और वो भी हिंदुस्तानी राइटर की लिखी हुई नहीं, बाहर के राइटर। वेब सीरीज बाहर की कंट्री की बनी हुई, अब आप उसको जो है इंडियन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी ऐसे कि जब वहां की सोसाइटी अलग है भाई, बिल्कुल वहां का समाज बिल्कुल अलग है। उसको आप इसराइल की किसी चीज को उठा के सीधा यहाँ पे रखे तो हिंदुस्तान में फिट नहीं, चांस ही नहीं है। तो आप फेर बदल कर करा के वो चलेगा आपको, आप ओरिजिनल कंटेंट पे काम नहीं करना चाहते, और आधे से ज्यादा जो है वो ग्राफिक कंटेंट पे काम करते। अभी तो बहुत रास्ता तय करना बाकी। What has COVID-19 situation brought to you? Is it security? Is it satisfaction? Is it time with your family and kids, or something else? Because COVID-19 situation एक ऐसा समय है, पैंडेमिक का समय ऐसा समय है
कि जहाँ हम लोग everybody, irrespective of any caste, class, creed, sex, प्रोफेशन, इवन जॉब नेशनैलिटी सब अलग अलग है। तो इसमें आप इस कोविड-19 सिचुएशन को आप दोनों के लिए सवाल है कैसे इन जनरल? नहीं मतलब अभी तो इस दौर से गुजर ही रहे हैं, तो मतलब अभी उस पे सोच पाना थोड़ा मुश्किल होता है। मतलब जब आप कोई थोड़ा गुजर जाता है वक्त, तो आप ज्यादा उसको ऑब्जेक्टिवली देख सकते हैं। पर मतलब एक लेवल की उकताहट भी होती है कि आप इतने टाइम तक बंद है घर में। एक ये भी होता है कि आपको पूरे टाइम एक घबराहट रहती है, रोज नई रिसर्च आ जाती है कि इसको छुओगे तो हो जाएगा, उसको छुओगे तो इस पे 8 घंटे रहता है, उस पे 8 घंटे रहता है वायरस। तो आप वो सब भी देखते रहते हो, एक हल्का कुछ लेवल का पैरानोया भी सेट इन हो जाता है टू सर्टेन डिग्री। फिर नंबर्स एस्केलेट कर रहे हैं, तो वो एक टेंशन रहती है। घर में बुजुर्ग माँ-बाप हैं, छोटा बच्चा है, तो आपको हर समय उस चीज़ का आपके दिमाग में रहता है कि क्या कहते हैं, भई आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहना अगर आप बाहर निकल भी रहे हैं। पर मतलब अब ये ऐसी चीज़ है जिसमें कि आपको लगता है कि सभी हैं, इस दुनिया में सभी लोग इसी एक ही प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो मतलब आप अपनी प्रॉब्लम को भी बहुत बड़े तरीके से नहीं देख सकते। जब भी आपको लगता है कि यार ये क्या हो रहा है, तो फिर आप ये सोचते हो कि मतलब दुनिया में बहुत सारे लोग इससे भी बहुत बुरी हालत में इस सिचुएशन की वजह से हैं और गुजर रहे हैं उससे। तो थोड़ा आप अपने आप को उस चीज़ का भी दिलासा भी देते रहते हो, तो एक बड़ा अजीब-सा माहौल है। मतलब लोग पूछते हैं कि क्या इसका क्या असर होगा फ़िल्मों पे? तो मुझे नहीं पता। लोग आजकल लोग ज़्यादातर ये बातें करते हैं, यार कॉमेडी चलेंगी इसके बाद। लोग इतना डिप्रेस हो गए कि ब कॉमेडी चलेगी, डार्क वगैरह टाइप के सब्जेक्ट्स नहीं चलेंगे। पर उसी लॉकडाउन के बीच में आपका पाताल लोक आता है, जो कि क्या कहते हैं, डार्क कंटेंट है और वो चलता है। लोग देखते हैं, लोग सराहते हैं, ना सिर्फ क्रिटिक्स पर आम जनता भी। आपको व्हाट्सएप ग्रुप्स पे वो आते रहते हैं कि यार पाताल लोक देखा। तो पता नहीं, मतलब ये मुझे लगता है थोड़ा-सा ये समय थोड़ा-सा कटेगा, गुजरेगा, सब ठीक-ठाक हो जाएगा वापस। तो शायद इसको पलट के, मुड़ के देख के चीज़ें समझ में आएँगी कि उस समय क्या हो रहा था। अभी तो हम लोग सब उससे गुजर ही रहे हैं। कोशिश ही कर रहे हैं, वी ट्राइंग टू रैप आवर हेड्स अराउंड व्हाट एक्चुअली इज़ हैपनिंग राइट नाउ। सो लिखने में भी प्रॉब्लम होती है। मतलब मुझे तो टहलने की बहुत आदत है लिखते वक़्त, कि टहलने निकल जाओ तो अब आप टहल नहीं सकते। घर में आप कहाँ तक टहलेंगे? मेरा 2 साल का बच्चा है, तो वो तो मतलब आप समझिए, लॉकडाउन में होना एक अलग बात है, 2 साल के बच्चे के साथ लॉकडाउन में होना बिल्कुल अलग बात होती है। जो घर में जो हल्ला और फिर बॉम्बे के घर इतने छोटे-छोटे कि आप छुप के किसी कोने में भी नहीं बैठ सकते। तो चल रहा है, मतलब अभी तो मैं खुद ही समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये लॉकडाउन है क्या? या फिर ये कोविड-19 का सिचुएशन क्या है? Varun, your take on this? सो हम लोगों ने बड़े नए-नए टर्म्स सीखे हुए हैं आजकल ज़िंदगी में। इट इज़ द न्यू नॉर्मल, इट्स द न्यू। तो अभी जो हिंदुस्तान में सिचुएशन है, मैं सही बताऊँ तो हमने तो अभी टिप ऑफ द आइसबर्ग देखा है। अभी तो मतलब छींका फूटा नहीं है, अगर वो फूट गया तो फिर क्या होगा, ये मतलब उसको सोच के डर लगता है। लेकिन आप इस बात को समझ के रखिए कि ये वायरस जो है वो आने वाले समय में हर इंसान को ग्रसित तो करेगा एक ना एक बार। आप जितना घर पे बैठे रहेंगे, साफ-सफाई ये वो आप रखेंगे, रखनी चाहिए, ऐसा नहीं है। लेकिन आप अपनी इम्यूनिटी भी कॉम्प्रोमाइज़ करते चले जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं पे आपसे ये दिस इज़ अ कैच 22 सिचुएशन कि मतलब बहुत सारे डॉक्टर्स से जो दोस्त हैं उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि भैया आप सिर पे बैठकर इससे नहीं, कब तक बैठ जाओगे घर पे? हाँ, बड़ा आसान है बीमारी से जीतना कि आप घर में बैठे रहो, पर घर में बैठे रहो तो फिर वही है, फिर बैठे रहो। आपका सारा काम बंद, सब आप पूरे देश को, पूरे दुनिया को आप कितने दिन बंद रख सकते हैं? वैसे ही इकोनॉमिक प्रॉब्लम एक खड़ी हो गई। तो लेकिन फिर वो है कि वो घर में आपके बूढ़े माँ-बाप भी हैं, एक बच्चा भी है, तो आप बाहर जाकर और सामान उठाकर ले आए, तो वो दूसरों के लिए बहुत बड़ी परेशानी बन सकता है। इट इज़ कैच 22 सिचुएशन। लेकिन जहाँ पर इतनी बड़ी परेशानी है, मुझे लगता है कि
बहुत सारी पॉजिटिविटी भी है। पूरी वसुधा जो है वो अपना स्वरूप बदल रही है एक तरीके से। आपके पोल्यूशन लेवल्स कम हो गए, मतलब बेसिकली एक बीमारी ने, एक मैन मेड बीमारी ने, मैं सही बताऊं, इंसानों को जो है जरा थोड़ा औकात में रहना सिखा दिया, थोड़ा तमीज में रहना सिखा दिया कि हम लोग जो है वो हमें नहीं करना चाहिए, बहुत पहले समझ जाना चाहिए था। नहीं हुआ तो अब वही है कि जो बच्चे प्यार से नहीं मानते फिर उनको पढ़ता ही पड़ता है। एंड पर्सनल लेवल पे तो मैं सही बताऊं, अभी जैसे अक्षय बोल रहा था लिखने को लेके, इतनी बड़ी परेशानी है क्योंकि एक सीन के पीछे जो है वो सोसाइटी के 4 चक्कर भी लगे हुए होते हैं कि आप सीन को वही लिखते हैं 20 मिनट के अंदर अगर लंबा सीन भी हुआ तो, बट वो सीन की स्ट्रक्चरिंग आप कंप्यूटर पे बैठ के या टेबल चेयर पे बैठ कर नहीं कर सकते। वो स्ट्रक्चरिंग जो है वो इधर उधर चक्कर काटते हुए होती है, वो अब होना बंद हो गया है। तो वो एक एपिसोड जो कि पहले 3 दिन में लिखा जा रहा था, उसको हफ्ते से ऊपर वो 10-10, 15-15 दिन ले रहा है कभी-कभी। क्योंकि अब यही है कि वैसे तो घर से बाहर निकलने का मन ही नहीं करता था कि आप पड़े रहें। अब जब आपको बोल दिया कि घर में बंद रहो तो लगता है कि यार एक चक्कर तो कम से कम बाहर का काटना बनता है। तो लेकिन फिर भी पॉजिटिव्स बहुत सारे हैं। आपने मतलब मुझे याद नहीं पड़ता कि हम पूरा परिवार एक साथ अब इस तरह बैठे से आखिरी बार बैठे थे। आप घर वालों के साथ बहुत वक़्त बिता पा रहे हैं। आप अब जब करने के लिए कुछ नहीं है तो नई-नई चीज़ें आप करना शुरू कर देते हैं। मेरे कई दोस्तों ने तो मतलब अच्छा खासा वो कुक बन गए 3 महीने के अंदर कि संजीव कपूर की किताबें जो है वो जिन-जिन के पास थी, अब मेरे पास तो भाई साहब ने मुझे कुछ 6-7 दे के रखी हुई थी। मैंने एक भी नहीं खोली उसमें से अभी बता दूँ, लेकिन फिर भी नई-नई चीज़ें ट्राई कर रहे हैं आप। कुछ फोटोग्राफी का शौक है तो आप, जैसे मुझे तो पर्सनली है ही है, तो आप जो है वो चीज़ें नोटिस करने लगते हैं ज़िंदगी में जो कि आपने पहले आप हमेशा नहीं कर पाते। नज़रअंदाज करते थे। तो मेरे हिसाब से तो पॉज़िटिव्स भी बहुत सारे पॉज़िटिव्स हैं। हालाँकि अब वक़्त आ गया है कि हम लोगों को दोबारा घर से बाहर निकलना पड़ेगा। एवरीबॉडी नीड्स टू गो बैक टू वर्क, लेकिन हमारी इंडस्ट्री में वो परेशानी है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग आप रख ही नहीं सकते। भई आपका जो है 2 एक्टर्स वो मुँह पे मास्क लगा के तो काम कर नहीं सकते। उनको जो है अगर रोमांटिक सीन है तो उनको गले भी लगना पड़ेगा। या तो फिर वही है कि आप सीन्स करिए 6 फुट से 6 फुट दूर रह के आप सारे के सारे सीन्स करें। बिकॉज़ अल्टीमेटली एक्टर्स ही हैं जो कि मतलब बिना मास्क के रहेंगे, बाकी सब तो पीपीई किट भी पहन के रह सकते हैं। परेशानियाँ बड़ी सारी हैं। जहाँ तक पर्सनल उसकी बात है तो फिर मेरे हिसाब से तो बहुत सारे पॉजिटिव्स भी हैं। आई थिंक इंसान को जो है थोड़ा लाइन पे लगा दिया है नेचर ने, और जिसकी ज़रूरत भी थी। तो हाँ, फ्रस्ट्रेशन है, ये वो 36 चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से प्लसेस ज़्यादा है इस चीज़ में। बस एक लास्ट क्वेश्चन आप दोनों से, व्हाट आर यू वर्किंग ऑन नाउ? आपने बताया वेब सीरीज, वरुण ने बताया, और अक्षत, व्हाट इज द न्यू प्रोजेक्ट दैट वी वुड लुक फॉरवर्ड इन द फ्यूचर? होपफुली एवरीथिंग कम्स बैक टू नॉर्मल। अब तो अभी तो बात चल रही है बस। तो मतलब मुझे भी बहुत अच्छे से पता नहीं है कि क्या कि कहाँ जाएँगे, क्योंकि क्योंकि यहाँ हमारी इंडस्ट्री में बातें बहुत होती हैं। तो मैं उन्हीं बातों के बीच में हूँ अभी कि एक एक इनफैक्ट फ़िल्म थी जो शूट होने वाली थी जून-वून के टाइम पर वो अब क्योंकि सारे शूट्स वगैरह कैंसल हो गए, तो जब ये सब कुछ खुलेगा और शूट्स वगैरह अलाउ हो जाएँगे, तो देखते हैं वो उसका शूट शुरू होगा। पर बाकी इस समय क्योंकि सबको लग रहा है कि ये वो वक़्त है जबकि क्या कहते हैं कंटेंट डेवलप करा जा सकता है, क्योंकि राइटर घर पे बैठा हुआ है, इससे बढ़िया क्या हो सकता है कि चलो यार मेरे दिमाग में एक आइडिया है, करोगे क्या है? तो वो वाली बातें चल रही हैं, पर आपको भी नहीं पता कि क्या कहते हैं, हाउ मच लेग्स डू दे हैव? आई मीन समथिंग कैचेस योर फैंसी बिकॉज़ because of the situation that we're in, but things might change pretty soon, and then people are not interested. So you never know until unless कुछ सॉलिडिफाई हो जाए चीजें। तो मैं अभी उस थोड़ा फ्लक्स वाले उसमें हूँ कि दो तीन चीजों पे बात चल रही है, बट नथिंग रियली इज फाइनलाइज्ड राइट नाउ। कुछ मैं अपना जो सोच रहा था वो थोड़ा बहुत लिख रहा हूँ। मेरे से तो कम ही हो पा रही है लिखाई इस बीच। ना कुछ देख पा रहा हूँ,
टीवी पे ना कुछ वो कर रहा हूँ, मन सा नहीं कर रहा मतलब नहीं आजकल। तो बट ठीक है, मतलब वही सोच रहे हैं कि उनमें से कुछ एक चीज फाइनलाइज होती है तो फिर थोड़ा जोर शोर से काम शुरू। Thank you, Varun Badola and Akshat Khildial. We are very thankful that you took out a very precious time and shared with us अपने विचार आपने हमारे साथ शेयर किए, अपनी दुविधाएं आप लोगों ने हमारे साथ शेयर करी, जो आपने एक्सपीरियंसेस आपके फिल्म इंडस्ट्री और टीवी इंडस्ट्री, लोग जानना चाहते हैं कि कैसे होता है, क्या काम होता है, क्या होप्स है, क्या फ्रस्ट्रेशंस है, वो आपने हमारे साथ शेयर किया। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी वेब सीरीज में। थैंक यू। Thank you.